Hello everyone, very good morning to my dear student. Dear student, today we start a new chapter of class 11, that is complex number and quadratic equations. So dear student, first we know that what is complex number. Okay. So complex number, everyone write the what is complex number? The combination of real number and imaginary number is called complex number. The combination of real number and imaginary number is called complex number. It is represented by z, small z. It is represented by small z. So z is equal to a plus iota b. So z is equal to a plus iota b. This is your a is what? A is your real part and iota b is your imaginary part. Where A and B are real numbers. So, just now z is equal to a plus iota b. And what is iota and what is the value? This is not I. This is what? Iota. And the value of iota. Now write the value. Value of iota. Value of iota is I is equal to root of -1. Value of iota means iota is equal to what? Root of -1. Remember that class 10 में यही होता था हमारा, जब रूट के अंदर माइनस कोई वैल्यू आ जाती थी तो हम लिख देते थे रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट. अब यहाँ पे रूट्स एग्जिस्ट होंगे. जहाँ पे रूट ऑफ -1 आएगा उसकी प्लेस पे हम क्या लिख देंगे? iota लिख देंगे. राइट. Now iota is equal to root of -1. What is this? Iota square. Tell me everyone, what is the square of iota? Iota square करेंगे so -1 हो जाएगा. So iota square is equal to what? -1. Iota cube is equal to -iota and iota cos 4 is equal to 1. Right everyone? The value of iota is equal to root of -1. Iota square is equal to -1. Iota cube is equal to -iota and iota cos 4 is equal to 1. Next is sum of two complex numbers. Sum and difference of two complex numbers. Sum and difference of two complex numbers. नॉर्मली हमें करना क्या है सम और डिफरेंस में, जैसे हम वेरिएबल और कांस्टेंट का ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैसे हमें यहाँ पे करना है. ठीक है, सिंपल सा. फॉर एग्जांपल आपको दिया z1 is equal to 2 plus 3 iota and z2 is equal to 5 minus 3 iota, and you have to find z1 plus z2. You have to find z1 plus z2. So z1 is what? 2 plus 3 iota plus z2 is what?
5 माइनस 3। नाउ रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करेंगे एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करेंगे। सो z1 plus z2 is equal to 2 plus 5 because this is your real part and here is 3 iota minus 3 iota. So z1 plus z2 is equal to 2 plus 5 7, 2 plus 5 हो जाएगा 7 and 3 में 3 subtract करेंगे that is 0 iota, that is what 0 iota। या इसी को हम लिख सकते हैं z1 plus z2 is equal to what 7, that is your answer। Now question is asking that अगर हम आपसे पूछें कि अब z1 plus z2 में रियल वैल्यू कितनी है, रियल पार्ट कितना है 7 है और इमेजिनरी पार्ट यानी आयोटा में क्या मल्टीप्लाई है 0, दैट विल बी 0। सिमिलरली अब आप फाइंड करिए व्हाट इज z1 minus z2। एवरीवन नोट दिस एंड फाइंड द z1 minus z2 फास्ट। Now product of two complex number, product of two complex number, next heading is that product of two complex number, product of two complex numbers। So dear students, normally for example आपको दिया है z1 is equal to 3 plus 4 iota and z2 is equal to 5 minus 2 iota। So z1 into z2, z1 into z2, 3 plus 4 iota into 5 minus 2 iota। नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन आपको करना है 3 into 5 is what 15, 3 into 2 minus 6 iota, 4 into 5 plus 20 iota and 4 to the 8 minus 8 iota is square। समझ में आने लगा because 4i into 2i, 4 to the 8 iota into iota, iota square। Now 15 minus 20 iota minus 6, ये दोनों लाइन टर्म है आपके, तो 20 iota में से 6 iota सब्ट्रैक्ट कर दीजिए प्लस का 14 minus 8 into minus 1 होगा क्या, because the value of iota square is equal to what iota square is equal to what -1। So 15 plus 14 iota plus 8 minus plus 8। Now add 15 plus 8 is what 23 plus 14 that is what z1 into z2। Note down, this is the way to find the product of two complex numbers। So now dear students, the next topic is that equalities of two complex number। So dear students, in here we have to compare real part to real part and imaginary part to imaginary part। So dear students, here is a question given that if 4x plus 3x minus y iota is equal to 3 plus minus 6 iota, then find x and y। So what is the real part of first equation, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, या फॉर एग्जांपल एक पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ यू कैन से दैट ये z1 है, इफ यू लेट इट एज z2। सो रियल पार्ट ऑफ z1, रियल पार्ट को शॉर्ट में आप क्या लिखेंगे re मतलब रियल पार्ट। सो रियल पार्ट ऑफ z1 इज व्हाट 4x and real part of z2 is what 3। now दोनों के भी इक्वल है इसलिए 4x is equal to what 3, then x is equal to what 3/4। this is your
वैल्यू ऑफ x। क्लियर? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, इमेजिनरी पार्ट को शॉर्ट में लिखते हैं I m फॉर इमेजिनरी। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज व्हाट? 3x minus y, not iota। iota में जो मल्टीप्लाई दैट इज इमेजिनरी पार्ट, और आयोटा के साथ वो लिखा है तो वो इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी पार्ट कैसे फाइंड करते हैं हम? जो आयोटा के साथ में है, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, अब बताइए इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 इज व्हाट? -6। और कंपेयर इट, 3x minus y is equal to -6। x के प्लेस पे क्या रखेंगे आप? 3 into x के प्लेस पे 3/4 minus y is equal to 6। 3 3 जा 9/4 minus ट्रांसफर कर दिए, y is equal to 6 minus 9/4। आफ्टर टेकिंग एलसीएम minus y is equal to 6 4 जा 24 minus 9/4 minus y is equal to, subtract it, minus 15/4, यानी y is equal to minus 15/4। This is the value of x and y is equal to 15/4। 15 minus 15 minus, note down। Here is one -6, right? So -6 -24, add it, -33 upon, that is what? 33 by, this is your next topic is division of complex number। division of complex numbers। z1 is 5 plus 2 iota and z2 is 3 plus 4 iota, and you have to find z1 divided by z2 is what? z1 divided by z2 is what? या z2 divided by z1 is what? So dear student, यहाँ नॉर्मली क्या करना है, हमें पॉलिनोमियल से डिवीजन नहीं कर रहे हैं, पॉलिनोमियल के जैसे डिवाइड करना है। आपको z2 लिखा 3 plus 4 आयोटा और डिवाइड कर दिया 5 plus 3। तो ये मेथड हमारे पास डिवीजन करने का नहीं है। डिवाइड कैसे करेंगे? डिवाइड का कॉन्सेप्ट क्या है? आपको लिखना z1 upon z2। z1 is what? 5 plus 2 upon 3 plus 4। नॉर्मली हमारा जैसे आपने रूट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्लास 9 में, आपको याद होगा कि डिनोमिनेटर में हमारा रूट नहीं होना चाहिए, और रूट को हटाने के लिए हम क्या करते थे? रेशनलाइजेशन। सो हियर इज आल्सो अ प्रोसेस, वी हैव टू रिमूव द iota from denominator, so we have to what? Rationalize the denominator। और rationalization के लिए क्या करते थे हम? डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से, you have to multiply by opposite side of the denominator। डिनोमिनेटर का साइन क्या है? प्लस है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस से। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 minus 4 आएगा अपॉन 3 minus, समझ में आ रही बात यहाँ पे? अगर केवल आयोटा होता तो किससे मल्टीप्लाई करते? आयोटा से केवल, ठीक है। जैसे √2 होता था तो आप केवल किससे मल्टीप्लाई करते थे? √2 से। तो सेम अगर केवल आयोटा है तो केवल आयोटा से करेंगे, लेकिन अगर आपके पास प्लस या माइनस का साइन है, प्लस का साइन है तो उसके अपोजिट साइन क्या होता है? माइनस से मल्टीप्लाई। माइनस का साइन होगा तो किससे करेंगे? प्लस से करेंगे। अब नॉर्मल आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। रेशनलाइजेशन का अगर प्रोसेस याद होगा तो जब भी हम रेशनलाइजेशन करते थे डिनोमिनेटर में a² माइनस b² का फॉर्म बनता है, बिकॉज a प्लस b एंड a माइनस b। आपको याद होगा क्लास 8 से हम पढ़ते आ रहे हैं a प्लस b एंड a माइनस b इज व्हाट? a² माइनस b²। सिमिलर
5 4 20 iota, 2 3 is 6 iota, and 2 4 is 8 iota square, right? Now denominator 3 square minus 4 iota का whole square, that is the identity of a square minus b square, right? Now z1 upon z2 is what? 15 20 iota plus minus 20 है plus minus that is what? minus 14 iota square is what? minus 1, so ये आपको प्लस 8 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर वैल्यू माइनस 1 होती है तो ये आपकी प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए z1 अपॉन z2 इक्वल टू 15 प्लस 8 व्हाट 23 माइनस 14 आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर व्हाट यानी प्लस 16 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 that is what plus 16 add it z1 upon z2 is equal to 23 minus 20 iota upon 25। अब इसको दोनों के साथ सेपरेट कर देंगे ताकि हमें रियल पार्ट अलग मिल जाए इमेजिनरी पार्ट अलग मिल जाए। सो z1 upon z2 is equal to 23 upon 25 minus 14 iota upon 25, this is your answer। अब अगर कोई इसमें पूछे कि इतना कुछ करने के बाद आप हमें ये बताइए कि इसका रियल पार्ट क्या है, इसका रियल पार्ट क्या है? रियल पार्ट आप z1 upon z2 बताइए इसका रियल पार्ट क्या था? 23 upon 25। हमने कहा इसका इमेजिनरी पार्ट बताइए z1 upon z2 का, बताइए क्या होगा? minus 14 upon 25, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में जब अभी लिखा था आपको याद होगा कि z इक्वल टू क्या होता है a प्लस आयोटा, यानी हमेशा यहाँ किसका साइन होता है? प्लस का। तो हम प्लस से कंपेयर करेंगे तो आयोटा में क्या इनटू है b है, इसलिए इमेजिनरी पार्ट यहाँ भी होगा, तो यहाँ पे माइनस का साइन है इसलिए हम z1 upon z2 का इमेजिनरी पार्ट होगा minus 14 upon 25। ये हो गया हमारा डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब दो टॉपिक और छोटी सी वो कंप्लीट करते हैं, नोट डाउन फर्स्ट। So dear student, this is the last topic of first exercise, that is what the modulus and the conjugate of the complex number। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग ध्यान से देखिएगा वीडियो को। z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अब इसका मॉडुलस फाइंड करना है, तो मॉडुलस मॉड ऑफ z या मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट आपका a है सो a स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट आपका b है सो b स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मॉडुलस ऑफ complex number। Now we have an example, if z is equal to 5 plus 3 iota, then find mod of z। So mod of z is equal to what? Under root of a square, a is what? 5। अगर कंपेयर करेंगे आपका 5 है, b आपका 3 है, 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। नाउ सॉल्व इट, अंडर रूट 5 स्क्वायर व्हाट 25, 3 स्क्वायर व्हाट 9, ऐड इट 25 प्लस 9 34, रूट से बाहर नहीं निकलेगा ये, दैट इज योर आंसर। दिस इज योर व्हाट मॉडुलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। नाउ कंजुगेट, सिंपल सा z इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, कंजुगेट करना, जो हम रेशनलाइजेशन करते हैं उसी को हम कहते हैं कंजुगेट करना। मतलब रेशनलाइजेशन का डिनोमिनेटर का पोजीशन हम चेंज करते हैं, है ना। यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे z आपको ये दिया है तो कंजुगेट को रिप्रेजेंट करते हैं z बार से, ठीक है। क्या ये z बार,
यानी z अगर आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z बार उसका कंजुगेट होगा। तो z बार सिंपल से क्या करना है, a माइनस आयोटा b, यानी करना क्या है आपको, रियल पार्ट का जो साइन है उसको अपोजिट कर देना है। रियल पार्ट का जो साइन है उसको क्या कर देना है, अपोजिट कर देना है, वही हमारा क्या हो जाता है, कंजुगेट। एग्जांपल 4 प्लस 3 आयोटा, अगर ये z है आपका तो z बार निकालना है, डिनोमिनेटर क्या होता है, z बार इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। एक और एग्जांपल लेते हैं, z इक्वल टू आपको दिया 3 माइनस 4 आयोटा, बताओ बेटा z बार क्या होगा, 3 प्लस 4 आयोटा। किसके साइन को चेंज करना है, रियल पार्ट के इमेजिनरी पार्ट के, इमेजिनरी पार्ट के। मान लीजिए आपके पास दिया z इक्वल टू -3 माइनस 4 आयोटा, तो z बार क्या प्लस 3 प्लस 4 आयोटा होगा, नहीं, गलत है ये, क्योंकि आपने इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर दिया है। आपको केवल साइन किसका चेंज करना है, सॉरी रियल पार्ट का साइन चेंज किया, आपको केवल साइन चेंज किसका करना है, इमेजिनरी पार्ट का। यही तो कंजुगेट भी होता है ना, जो रेशनलाइजेशन करते हैं, अभी आपने किया जैसे पहले डिवीजन में 1/1 मान लीजिए 3 प्लस 4 आयोटा है, तो हम क्या करते हैं 3 माइनस 4 आयोटा पर नीचे मल्टीप्लाई, दिस इज आल्सो नोन एज कंजुगेट। यदि हमने क्या किया, इसको रेशनलाइजेशन रूट पे करते थे, यहाँ पे क्या कहलाता है, कंजुगेशन, कंजुगेट कर रहे हैं इसको, ठीक है। और कंजुगेट करने के लिए हम क्या करते हैं, अपोजिट साइन का यूज करते हैं, वही वहाँ पे बताया गया। तो ये दो टॉपिक हो गया, मॉडुलस एंड कंजुगेट। So dear student, this is the topic for the exercise 5.1. So after watching the video, try to solve exercise 5.1 and thank you so much.